Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic Hershey and Chase experiment. So Griffith in 1928 performed the experiment on mice, and the three scientists MacLeod, McCarthy and Avery, these scientists also proved that the DNA is the genetic material. But most of the scientists, they were not satisfied with their conclusion, and they are still thinking that the protein is the genetic material. So the unequivocal proof of that the DNA is the genetic material, that was given by Alfred Hershey and Martha Chase in 1952 by their experiment. Then finally it was proved that the DNA is the genetic material, not the protein, because in 1928 Griffith only proved that there is something which is the genetic material and which is responsible for the transmission of the character, but the biochemical nature, that was not given by Griffith. Then these three scientists, McCarthy, Avery and MacLeod, these three scientists, they repeated the Griffith experiment and finally proved that the DNA is the genetic material, not the protein. But most of the scientists, they were not agreed with their statement, and finally this Alfred Hershey and the Martha Chase, both the scientists proved that the DNA is the genetic material. So let's discuss their experiment. To understand this experiment, firstly there should be the clear idea in your mind that what is bacteriophage. So bacterio means कौन बैक्टीरिया कि जो बैक्टीरियो के ऊपर अटैक करेंगे, and the phage means the virus. So here one bacteriophage is present. This is the bacteriophage. And what is bacteriophage? The bacteriophage is the virus which attack on bacteria, and this bacteria is E. coli, Escherichia coli. This is the bacteria mostly used in these experiments. So here this bacteriophage, it is not the bacteria but it is the virus, and it is attacking on bacteria, so it is known as bacteriophage. So what he had done, both the scientists, they proved that the DNA is the genetic material, DNA that is the genetic material, not the protein. उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है. तो वो कैसे उन्होंने प्रूव किया? So both the scientists worked on virus, and the virus have only the protein coat. This is the protein coat plus DNA जेनेटिक मटेरियल. तो इसके पास जो वायरस है, इसके पास क्या है? प्रोटीन कोट है एंड द DNA the genetic material, and this is a virus known as bacteriophage because it attack on bacteria. तो उन्होंने क्या किया, जो ये बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर सिर्फ क्या होगा? प्रोटीन होगा और क्या होगा? DNA. सो दिस फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस होती है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ DNA. आपने पढ़ाई होगा DNA, दैट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, शुगर, फॉस्फेट एंड बेस पेयर्स होते हैं. तो जो फॉस्फोरस है वो DNA में प्रेजेंट होगा, एंड द सल्फर दैट इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन. सो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेडियो लेबल्ड, जैसे इसमें प्रोटीन कोट को, जो प्रोटीन कोट है
मतलब इस बैक्टीरियोफेज को एक कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया। देयर वाज द कल्चर मीडियम इन विच ई कोलाई भी उन्होंने ली और ये बैक्टीरियोफेज लिया, और इस बैक्टीरियोफेज में जो उसकी प्रोटीन कोट है उसको रेडियो एक्टिव, इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया सल्फ़र S35। और तो बिकॉज जो सल्फ़र है दैट इज़ प्रेजेंट इन द प्रोटीन, तो जो नए बैक्टीरियोफेज थे उनके अंदर जो ये बैक्टीरियोफेज हैं इनकी प्रोटीन कोट में भी क्या मिला, S35। यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज़ द, ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर किसको शो कर रहा है, रेडियो एक्टिविटी को। तो इसमें जो प्रोटीन कोट है दैट इज़ मेड अप ऑफ द रेडियो एक्टिव सल्फर, एंड हेयर द जेनेटिक मटीरियल दैट इज़ रेडियो एक्टिव। ओके, सो क्या किया उन्होंने, जो बैक्टीरियोफेज था उसको ग्रो किया एक ऐसे मीडियम में जहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फ़र था। और ये कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि द इन प्रोटीन द सल्फ़र इज़ प्रेजेंट, बिकॉज प्रोटीन्स दीज आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, और कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के, बिकॉज पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अमीनो एसिड की और वो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है, लाइक मिथियोनिन। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन कैरी सल्फ़र। तो जो ये सल्फ़र है ये किस में जाएगा, प्रोटीन कोट में, और जो वो फॉस्फोरस है वो कहाँ जाएगा, डीएनए में। ओके, सो तो जो ये प्रोटीन कोट है दैट इज़ नाउ रेडियो लेबल्ड S35। इस प्रोटीन कोट में सल्फ़र मिलेगा, एंड द ई कोलाई इज़ ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे उसने 3 स्टेप्स किए उन साइंटिस्ट ने, और व्हाट आर दीज 3 स्टेप्स, यू कैन लर्न विद ABC। एक ट्रिक से याद रखोगे आप उसको, ABC। A मीन्स अटैकिंग, B मीन्स ब्लेंडिंग, एंड C मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन। अटैकिंग मीन्स कि सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज अटैक ऑन दैट बैक्टीरिया और दैट वायरस, अटैक ऑन द बैक्टीरिया ई कोलाई, अटैक करेगा या इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन करेगा। सो तो इन्फेक्शन से क्या होगा, मीन्स द जेनेटिक मटेरियल इज़ ट्रांसफर्ड इन ई कोलाई। जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नोट द प्रोटीन कोड, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है ओनली दैट इज़ ट्रांसफर्ड। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल अभी हमें ये पता नहीं है कि ये रेडियो लेबल्ड है या नहीं, बाद में हम फाइंड आउट करेंगे। ओनली द वन स्टेप दैट इज़ द इन्फेक्शन। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम बोलेंगे इन्फेक्शन, और यू कैन लर्न इट विद ABC, अटैचमेंट। तो ये अटैक करेगा, अटैचमेंट हो जाएगी, दैट जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर इन द ई कोलाई। द सेकेंड स्टेप इज द ब्लेंडिंग। इन केस ऑफ ब्लेंडिंग, दिस bacteria that is agitated with these bacteriophage। agitated means इनको बहुत ही strongly इनको मिक्स किया जाएगा, हिलाया जाएगा, जिससे जो अटैच होंगे ये बैक्टीरियोफेज ये वहाँ से रिमूव हो जाएंगे इन सेल से, ई कोलाई सेल से। सो दैट इज सेकेंड इज द ब्लेंडिंग, एंड थर्ड केस दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर जो यहाँ पर जो कल्चर किया गया है, ई कोलाई इज देयर, दीज बैक्टीरियोफेज आर देयर, तो इसकी क्या की जाएगी, सेंट्रीफ्यूगेशन की जाएगी। सो सेंट्रीफ्यूगेशन जो हम करते हैं वो एक तरह से जैसे हम कर्ड से जो बटर मिल्क निकालते हैं उस तरह से ही उसको पूरा मिक्स किया जाता है, और जिससे जो बटर है वो बाहर निकल आता है और बटर मिल्क जो रह जाता है, इस तरह से हमने करना है। सो दैट इज़ नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या मिला, जो अंदर जो ई कोलाई के अंदर था जो जेनेटिक मटेरियल, वो हमें रेडियो एक्टिव नहीं मिला। सो नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल। जो नई सेल बनी उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ, बट डिटेक्शन ऑफ दिस रेडियो सल्फर
35 इन द सुपरनेटेंट। और सुपरनेटेंट में मीन्स जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो जो नई सेल बनी ई कोलाई की, उसके अंदर तो कोई भी डिटेक्शन नहीं मिली। बट जो सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट के अंदर क्या थे, ये जो बैक्टीरियोफेज थे जो फ्री हो गए थे, जो प्रोटीन कोट थी उनकी बैक्टीरियोफेज की, वो थी सुपरनेटेंट के अंदर। और उसमें हमें क्या मिला, दिस रेडियो एक्टिव सल्फर। तो इससे क्या पता चला कि प्रोटीन इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल जो एक नई सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा, अगर वो सेल के अंदर गया ही नहीं तो सेल के अंदर जो सल्फ़र की डिटेक्शन है, रेडियो एक्टिविटी की डिटेक्शन है, वो नहीं मिलेगी। तो सेल के अंदर प्रोटीन कोट नहीं गया तो सेल के अंदर कोई भी नो रेडियो एक्टिव सल्फ़र डिटेक्शन इन द सेल। तो इससे यहाँ से प्रूव हो गया कि दैट प्रोटीन इज़ नॉट द जेनेटिक मटेरियल। बट यहाँ पे अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो सेम स्टेप वी विल डू विद डीएनए। नाउ लेट्स रिपीट दिस स्टेप अगेन। हेयर द बैक्टीरियोफेज इज प्रेजेंट एंड नाउ the protein coat is not labeled with radioactive. Here the genetic material, इसको हमने किससे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से हमने इसको ट्रीट किया। और इस कल्चर मीडियम में जब हम ग्रो करेंगे सेल को, दिस सेल इज ई कोलाई और ये क्या है, दैट इज द बैक्टीरियोफेज। हेयर द जेनेटिक मटेरियल इज लेबल्ड, हेयर यू कैन राइट P32 बिकॉज फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द डीएनए। डीएनए में आप कैसे याद रखोगे, जैसे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, सो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द डीएनए। सो फर्स्ट स्टेप इज सेम इन्फेक्शन, फर्स्टली अटैचमेंट ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज विद द बैक्टीरिया एंड this transfer of the genetic material is done in the E. coli or in the bacteria. Then second is the blending. Blending फिर वही होगा, agitation होगा, बहुत ही strongly इनको हिलाया जाएगा सेल्स कल्चर मीडियम को, तो उससे जो प्रोटीन कोट है वो बाहर उसमें कल्चर मीडियम में रह जाएगा एंड ओनली द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर। तो आफ्टर ब्लेंडिंग देन अगेन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है वो वही 3 स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हुए एंड फाइनली व्हाट वाज द रिजल्ट हेयर नाउ। सो व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर द ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। सो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इज डिटेक्टेड इन द सेल। जो नई सेल बनी उसकी बैक्टीरिया की, उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, बिकॉज फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और इससे हमें पता चला कि जो डीएनए है दैट इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन और वहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन इन द सुपरनेटेंट। और जो सुपरनेटेंट रह गया उसमें भी नो रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोटीन कोड को तो लेबल किया ही नहीं था, बिकॉज इन द सुपरनेटेंट only the protein coat is present. प्रोटीन कोट प्रेजेंट थी, यहाँ पे हमने प्रोटीन कोट को लेबल नहीं किया था, बट हेयर द प्रोटीन कोट आर लेबल्ड विद सल्फर। तो यहाँ पर इसलिए आया था डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। जो रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो डिटेक्ट किया गया था सुपरनेटेंट में, बट हेयर नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट नाउ इट इज प्रूव्ड दैट the DNA is the genetic material, not the protein. So that the Hershey, Alfred Hershey and Martha Chase experiment, this experiment in 1952, this experiment was the unequivocal proof that DNA is the genetic material. तो जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च है वो किसने की थी, ग्रिफ्थ ने की थी। उसने एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर, स्मूथ स्ट्रेन लिया और जो रफ स्ट्रेन लिया। स्मूथ स्ट्रेन जो विरुलेंट था, रफ स्ट्रेन नॉन विरुलेंट था। फाइनली उसने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन लिया, तो जो रफ स्ट्रेन था वो स्मूथ में चेंज हो गया कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके बायोकेमिकल नेचर को ग्रिफ्थ नहीं बता पाया। उसके बाद फिर 3 साइंटिस्ट मैक्लियोड, एवेरी और मैकार्टी, इन तीनों ने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट किया
और फिर बताया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है बट और जो साइंटिस्ट हैं, सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चैज इसने एक्सपेरिमेंट किया रेडियो एक्टिव सल्फ़र लेके और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेके। रेडियो एक्टिव सल्फ़र, जो सल्फ़र होता है वो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है और फॉस्फोरस जो होता है वो डीएनए में। तो ये एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज लेके एंड फाइनली प्रूव्ड दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू।